Where is Dr. Kohli? Hello, is that Mr. Seth at the Secretary's office? Hello? Hello? Yeah, sir. May I audible, sir? Yes, yes. Yeah, sir. Sir, shall we join in 10 to 15 minutes? He'll join in 10 minutes. 10 to 15 minutes, sir. Okay. Okay. Thank you, sir. Sir, we will start the national anthem or we should wait? Wait for 5 minutes because the entire thing will get... Because sir, YouTube live streaming शुरू हो गया है. A very warm welcome to all of you. My name is Shravani Rane. I am from class FYIT of Vedanta College, Vittalwadi. Welcome you all for this national conference. It gives me a great pleasure to be the part of this national conference on a very relevant topic, youth employability, opportunity and challenges. I request all of you to please stand up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Dr. Kohli, you can start, I think, with the CEO and Dr. Harish Shetty. Should you not wait for the secretary? Yeah, we can wait. Meanwhile, then we need to discuss certain things because it is streaming live. So,
Yogesh ji, good morning. So I have requested the secretary's office also, and he has responded saying that the secretary will join at any moment. So let's wait for 2-3 minutes. Meanwhile, Dr. Shetty, how is it going in terms of the counseling, the program with Dr. Kohli? You're on mute. You need to start a counseling center at the earliest. And Yeah, so I hope by the end of today, Dr. Kohli, you would have chopped out a concrete plan of action in this regard. No, you're on mute. We can't hear you at least. Dr. Kohli, we can't hear you. So we would like to welcome all the participants. We have large number of registration from all over India of principals and faculty and students. All of them are eager to listen to the dignitaries. We have been fortunate to bring 3 very high-powered names from the field to speak on a very pertinent topic. And we would like to thank each one who has taken time out and are attending the conference. Apologies for the delay. The secretary is joining in a few minutes. Meanwhile, Ravi Krishnan sir is the CEO of Vedanta Foundation. He will brief the audience a little bit about what Vedanta Foundation is doing. We are doing extensive work in the field of community upgradation in knowledge and skilling. I request Ravi Krishnan sir to give a brief view about what Vedanta Foundation is generally doing in the field of education and skilling. First of all, I feel extremely glad to welcome everyone to this much awaited national conference. Firstly, I want to thank the experts for taking their precious time out and making it to this event. Now, India, as you see, is a powerhouse when it comes to the available workforce, as 50% of the country's population is below the age of 25. Though we are blessed with these natural resources, not every youth entering the workforce is employable. The students, what they need is skill training, along with formal education to secure employment opportunities, to earn their livelihood. The youth of India are facing a roadblock, both in terms of achieving the degrees in the paper they want, and also the vocational skills that they need. So there is an extreme need to ensure that India's youth is supported in completing higher education and along with it, gaining the right skills to secure employment. Now, to address this issue, Vedanta Foundation is continuously working towards empowering the youth. The foundation runs 3 colleges and 2 schools that are focused on providing quality education for students from less privileged communities. And these colleges are in the states of Maharashtra, Rajasthan, and West Bengal. These education institutions, they are striving to remove the monetary barriers for these students, and they also ensure quality education, enabling environment for the students. All these institutions put together, we support 6,000 students from the less privileged communities. And most of these students are first generation learners. In the current scenario, the foundation believes that vocational training should be employment centric. Hence, under the Vedanta Rojgar initiatives, we run an employment-linked skill training program that has provided skill training to over 1 million students. As on date, we have 63 Vedanta vocational training centers, which impart skill training to around 11,000 students annually. Now, this conference on youth employability in India, opportunities and challenges,
is one of the initiatives to spread awareness and facilitate a conversation around this topic with all the stakeholders. So I request all the students and faculty of all our institutions to take an active part in this national conference and make it an impactful event. Thank you. Dr. Kohli, the Secretary Atul Tiwari ji is with us now. So I would request you to start with the introduction, welcome address and the program, because his time is extremely precious. And over to you, Dr. Kohli. Thank you, sir. Good morning. Good morning, sir. Dr. Kohli, we can't hear you. Hello. Now Yes. I would like to invite Surijat Roy, sir, the advisor of education skills of Vedanta Foundation, to share the information about National Conference. Good morning, everyone. So my task is to set the context for this Good conference. morning, sir. We are, hello. Yes. So my task is to set the context for this conference. Before I do so, I would like to welcome Mr. Atul Tiwari ji, the Secretary of the Ministry of Skilling, who is with us today. I know more than anyone else, perhaps in this audience, how difficult and how busy he is, and how difficult it is for him to spare time to address students. And I'm extremely grateful to him for being with us, for agreeing to address us today, and the faculty and the students of the entire Vedanta fraternity. I would also like to welcome Dr. Harish Shetty. He's a well-known psychiatrist, and he is very well integrated with our higher education setup, and is going to help us set up counseling centers in all the 3 colleges. We will also soon have with us Mr. Deolankar, who is the Director Higher Education, Government of Maharashtra, and an extremely important person for us in the scheme of things. So the details of the numbers of students we are reaching, the colleges we have, besides we have 2 schools also and 2 special schools that has been shared with you by the CEO. What I wanted to share with you is the context on why we are here today and where are we going. So we consider ourselves as very different from any other education institution for higher education in India. And that is because of the following reasons. Number one, we are not focusing on admitting brilliant students. Not at all. Our ethos is admitting students who do not get admission anywhere else into our fold in the schools and colleges. They are almost everybody from the economically weaker sections. Therefore, they need to be working while they are studying. And because of these compulsions, it is unlikely that many of them are going to be above average or brilliant. They are average students who we take in, and our effort is to prepare them for employment and life. Therefore, our fees are consciously kept as extremely nominal, as much as only 8,000 to 10,000 rupees an annum. And yet the infrastructure we provide to these students and youngsters is at par with the best around. So this kind of combination you normally don't get to see in India. Either we have institutes who are extravagant, they are focusing more on building institutional buildings, while we focus on building institutions. Not just degree students. We are developing this concept of a community college where our institutions will become the hub of all kinds of employment linked activities with education and youngsters. So apart from degrees, we want to reach out to as many numbers as possible through certificate and diploma courses on employment linked skill programs. We are also looking at running double shifts for our degrees so as to reach the maximum number of beneficiaries. We are also looking at running
professional courses and coaching courses in the evenings. We are also looking at running call centers from our colleges where students can earn while they learn. In our higher education vertical itself, it is not only about teaching. It is also about spoken English, something very important because, as I said, our students are not from a very affluent background. They are often weak in English. So begin with spoken English, add on effective communication, then add on public speaking, add on counseling, add on skill courses, add on internships, and ultimately apprenticeships. We are already in touch with the both organizations in North, West, and East India, and they are going to help us bring the students on the portal. So after they graduate, they should go through the apprenticeship offers in case they do not get employment, and then get employment and get ready for employment. We therefore feel that all of this, where we are not looking at building IITs, building IIMs, which are making the already privileged more privileged, but looking at bringing at par students who are not so privileged with students who are privileged and making them ready for employment and life. I think this is a very contextual kind of approach in India, very rarely seen. So we are very, very excited about it. And we need your full support, sirs, to get this going. We need the approvals from the Director of Higher Education to get new courses in from the Bombay University, through the Bombay University, approvals for apprenticeship embedded degree courses. And we need your full guidance in whichever way you can offer us. And that's the context of youth and employability today, because as we know, India being one of the highest developing countries and the youngest country, so where we have huge demands for jobs, at the same time a huge supply of youngsters, but this demand and supply gap is still there, which we need to bridge through this kind of holistic higher education system. That's all I had to say now. Thank you so much. Thank you once again for joining the conference, sirs. Thank you so much for your kind words, sir. I would request Ms. Yogita from SY BAP to introduce Dr. Shailendra Deolankar, sir. No, no, sorry. Very sorry, Mr. Atul, sir. We are very happy and delighted to have you with us today. I would like to brief you that principals and faculty and students from all over India are participating in this event. We extend you our warm welcome and would request you to guide us on how you are looking forward towards the youth employability in India, and about a little bit on how government is supporting this initiative. As Sujit sir has already spoken that there is a lot of demand, and we have a lot of youngsters keen to become employable. So looking forward to your enriching words, sir. Thank you, Dr. Kohli, and good morning, everyone. आप सबको मेरा नमस्कार. मुझे इस सभा में आने में थोड़ी लेट हुई, इसके लिए मैं आप क्षमा प्रार्थी हूँ. दिल्ली में काफी रास्ते बंद हो जाते हैं वीआईपी मूवमेंट से, इसलिए मुझे आने में थोड़ी लेट हो गई. मैं समझता हूँ कि मुझे किस भाषा में बात करना चाहिए, अंग्रेजी में या हिंदी में या कन्नड़ में. तो हिंदी ठीक रहेगा. हिंदी ठीक रहेगी. हिंदी बहुत अच्छी रहेगी, पर मेरे लिए तो कन्नड़ भी बहुत अच्छा रहेगा. नमस्कार सर. नमस्कार शेट्टी साहब रे, तमगे थोड़ी बड़ा खुशी है. तो सुमन जी, ट्रस्टी वेदांता फाउंडेशन, डॉक्टर देवलंकर, डायरेक्टर हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, डॉक्टर हरीश शेट्टी और श्री नारायण स्वामी, सुरजीत रॉय साहब, रवि कृष्णन साहब, डॉक्टर कोहली, वेदांता कॉलेज के सारे प्रिंसिपल्स, फैकल्टी और स्टूडेंट्स, छात्रगण.
देश में ये काफी निर्विवाद है कि हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन है और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उससे एम्प्लॉयबल यूथ कम निकल रहे हैं और उन्हें हमें कुछ ऐसे स्किल देने की जरूरत है ताकि वो एम्प्लॉयमेंट रेडी हो सके। दूसरा, जैसा मिस्टर रॉय ने बताया कि वेदांता फाउंडेशन से जो शिक्षा संस्थान जो चलाए जा रहे हैं कम्युनिटी कॉलेज की तरह चलाए जा रहे हैं, जिसमें डिग्री एंड डिप्लोमा दिया जाएगा और वीकर सेक्शंस के, वीकर इकोनॉमिक बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनको टॉप क्लास एनवायरनमेंट में उनको एजुकेशन देने की व्यवस्था काफी नॉमिनल रेट में कराई जाएगी। मैं कहूँगा कि ये काफी सराहनीय प्रयास है वेदांता फाउंडेशन का और इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार कैसे सम्मिलित हो सकती है, ये एक हमारे पास इशू आया है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा अपने वक्तव्य में, अपने भाषणों में, अपने अभिव्यक्ति में उन्होंने हमेशा स्किल्स, कौशल और एजुकेशन दोनों को बहुत ही महत्व दिया है और उनका यह मानना है कि अगर देश को हमें आगे बढ़ाना है तो हमारे युवाओं को स्किल और एजुकेशन, कौशल और शिक्षा दोनों ही चाहिए, ना सिर्फ कौशल ना सिर्फ एजुकेशन पर दोनों चाहिए। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो वेदांता फाउंडेशन से जो चलाए जा रहे जो संस्थान है, अगर उनमें स्किल और एजुकेशन को साथ लेकर बढ़ने की कोशिश की जा रही है तो ये काफी उत्तम और दूरदर्शी प्रयास है जिसपे इन्हें आगे बढ़ना चाहिए। हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके अंतर्गत भी हमारी शिक्षा सिस्टम को हम कैसे वोकेशनलाइज कर सकें, कैसे उसको एप्लीकेशन ओरिएंटेड कर सकें, उस पर काफी महत्व दिया गया है। इस संदर्भ में हमारा जो मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय है, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे मंत्री हैं शिक्षा के भी और कौशल विकास के, उनके नेतृत्व में और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तत्वाधान में हम काफी इसमें काम कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये बच्चों को समझाने की आवश्यकता है, आपके जो शिक्षाविद हैं, शिक्षक हैं, उनको भी बताने की आवश्यकता है कि अभी तक जो हम औपनिवेशिकवाद शिक्षा व्यवस्था में हम चले आ रहे हैं जिसमें डिग्री को ज्यादा महत्व दिया गया और हुनर को और कौशल को कम महत्व दिया गया, उस माइंडसेट से, उस विचारधारा से हमें निकलने के लिए हमें ये आवश्यक है कि हम कैसे एजुकेशन, शिक्षा और कौशल को साथ लेकर आए। इस संदर्भ में मैं बताऊंगा कि यहाँ पे 2 चक्के हैं जिस पे ये गाड़ी चलेगी। पहला चक्का जो है वो होगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का, जिसके अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था में वोकेशनल एजुकेशन, कौशल विषयों को कैसे लेके आया जाए। तो अगर आप किसी ने भी अगर शिक्षा नीति अगर पढ़ी होगी तो उसमें ये दिखाया गया है कि 6वीं से 8वीं तक वर्ल्ड वर्क की व्यवस्था होगी और 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कक्षा में हमें कौशल से संबंधित विषय भी अनिवार्य रूप से लिए जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो एजुकेशन के साथ स्किलिंग उसके साथ मिलेगी और बच्चों में भी ये विश्वास आएगा कि हम कैसे पढ़ने लिखने से भी ज्यादा जरूरी, साथ ही साथ इतना भी जरूरी कि हमको ये वोकेशनल सब्जेक्ट सीख पाए। जैसा रॉय साहब कह रहे थे, हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री करना, इंटर्नशिप लेके आना, उनके जो सेमेस्टर सिस्टम है उसमें एक पार्ट प्रैक्टिकल लर्निंग को भी डालना, वर्कशॉप भी डालना, इसके दिशा में भी यूजीसी ने 2020 में एक अपना गाइडलाइंस निकाला है और उसके अंतर्गत बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस अपने सिलेबस को चेंज कर रही हैं, जिससे वो ज्यादा मीनिंगफुल होगा और किताबी जानकारी से ज्यादा एप्लीकेशन ओरिएंटेड रियल लाइफ लर्निंग कैसी होगी उस पर भी काम हो रहा है। दूसरा चक्कर मैं कहूँगा नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में, जिसमें 30 के मल्टीपल्स में हमने आवर्स में हमने क्रेडिट बनाया है। ये क्रेडिट फ्रेमवर्क भी हम लेके आए हैं जो अब सारे वक्त स्टेक होल्डर के साथ डिस्कशन के बाद वो फाइनल्स हो रहा है। इससे ये होगा कि स्किलिंग और एजुकेशन दोनों को एक मापदंड में हम लेके आ पाएंगे
और उससे क्या होगा कि अभी हाल में यूजीसी ने भी अपना एक सर्कुलर निकाला जिसमें ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि डिग्री हमें 3 साल या 4 साल में खत्म करना चाहिए, 6 साल में आप खत्म कर सकते हैं। इसका उद्देश्य ये हुआ कि जो बच्चे पढ़ते समय वो एजुकेशन की ओर जाएं, पढ़ते समय एम्प्लॉयमेंट की ओर जाएं, कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले, फिर एजुकेशन में आए, फिर डिग्री लें, तो मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट की जो व्यवस्था है वो क्रेडिट आधारित होगी। और उससे क्या होगा कि हमें बच्चा जो है वो अगर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में सारी चीजें परिलक्षित होती हैं तो जो उसने कार्य क्षेत्र में जो सीखा है उसका भी उसको एक क्रेडिट मिलेगा, और जिससे उसको अब भविष्य में हायर एजुकेशन जाने में और स्किलिंग करने में आसानी होगी, और उसकी स्किलिंग और कैपेबिलिटी जो है वो भी एक सर्टिफाइड हो सकेगी। तो इस नजरिए से देखने से हमें ये लगता है कि हम कैसे स्किलिंग एजुकेशन को स्किलिंग में लेके आके दोनों को समानांतर रखें। तो आपको ये लग रहा होगा कि काफी ये सारी सैद्धांतिक बातें, अवश्य सैद्धांतिक बातें, क्योंकि ये काफी पैराडाइम चेंज वाली बात चल रही है, और इससे हमारे शिक्षा और कौशल के सोचने के नजरिए में आधारभूत परिवर्तन समय के साथ आएगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी चेंज को हम तुरंत एक ही दिन में सब जगह लागू नहीं कर सकते। तो मैं ये आपको ये बताना चाहूंगा कि इस दिशा में शिक्षा मंत्रालय और कौशल मंत्रालय प्रयासरत है, और हम इसमें अपने यूजीसी, एआईसीटी, स्कूल बोर्ड्स के साथ हम लगे हुए हैं ताकि कैसे हम इस व्यवस्था को इंटरनलाइज कर सकें और अपने सीमा में लेकर आ सकें। जहां तक यूथ एम्प्लॉयबिलिटी की बात है, जैसा रॉय साहब भी बता रहे थे कि अभी हमें आवश्यकता है कि हम एम्प्लॉयबिलिटी पे काफी ध्यान दें। इस बार के हमारे बजट डॉक्यूमेंट में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बात कही है उसमें सारी चीजों में जो सप्तऋषि उसमें भी यूथ और एम्प्लॉयबिलिटी एंड लाइवलीहुड पे काफी जोर दिया गया है, और उस दिशा में हमें यह लगता है कि चाहे हम देश के किसी भी सेक्टर में जाएं, हमें स्किलिंग की आवश्यकता है। चाहे स्किलिंग मेडिकल डिवाइसेस करने में हो, या टूरिज्म से रिलेटेड स्टॉल्स बनाने में हो, या सड़क बनाने में हो, या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो। इसमें ये स्टडी में ये पाया गया है कि अगर हम कौशल विकास करते हैं तो हमारी जो कार्य क्षमता है, हमारी एफिशिएंसी है, हमारी प्रोडक्टिविटी है, वो कई गुना बढ़ जाती है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें सबसे बड़ा आवश्यक ये है कि जिस तरह से कम्युनिटी कॉलेज की जो प्रतिस्थापना की गई, जो एक पुल के सेतु की तरह काम करेगा वोकेशनल एजुकेशन और करिकुलम एजुकेशन के साथ, उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। हमारे जो सारे लोगों को जो शिक्षा की उतनी सुविधा नहीं मिली उनको हम लेके आए, और जैसा आप ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो होती हैं, इंग्लिश जानना, बातचीत करना, पब्लिक स्पीकिंग करना, इंटरपर्सनल रिलेशन करना, प्रायोरिटाइजिंग करना, थोड़े से डिजिटल नॉलेज लेना, ये सारी चीजों करने से हमें उनको शिक्षा के साथ साथ काम के बारे में अगर हम उनको एक्सपीरियंस दिलवाते हैं तो उससे हमें बहुत फायदा होगा। उस दिशा में अगर देखा जाए तो अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री कोर्सेज वो काफी महत्वपूर्ण होगी। इसमें जैसा रॉय साहब भी कह रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि जैसा उन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र या बॉम्बे यूनिवर्सिटी जो है इसके बारे में काफी ओपन माइंड से देखें और अपने सिलेबस को पूरी तरह से रीजिग करें ताकि इसको क्रेडिट व्यवस्था पर आधारित पर लेके आया जाए और उसमें प्रैक्टिकल एजुकेशन भी लेके आया जाए। मैं समझता हूं कि अगर हमारी सामान्य शिक्षा व्यवस्था में भी अगर सॉफ्ट स्किल को प्रधानता मिले जैसा आप देना चाह रहे हैं, और उसको अगर हम अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप से लिंक करें और हम कैसे उसको इंडस्ट्री के जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी हमको तैयार करने का प्रयास करें, तो हमें निसंदेह इसमें अपने बच्चों के फ्यूचर बढ़ाने में और उनको एम्प्लॉयबल बनाने में काफी आसानी होगी। जिस गति से हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था बढ़ रही है, अभी हम लोग 5वें स्थान पे हैं, और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें एक लक्ष्य दिया हुआ है कि हम इस लेवल 2047 में अगर हम पहुंचना चाहेंगे, तो हमें बहुत जरूरी है कि हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो हमारे यंग पीपल हैं, उनको हम इस तरह का कौशल और एजुकेशन दे सकें। आपको ये बताना चाहूंगा एजुकेशन हम क्यों कहते हैं। एजुकेशन हमें कुछ कोर स्किल्स दी जाती हैं, जैसे न्यूमरेसी हो गया, अक्षर ज्ञान हो गया, और जो स्किल्स हैं जो ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं, जिसमें हम किसी एक विषय पर कैसे काम कर सकते हैं, कोई कंप्यूटर कैसे बात कर सकता है, कैसे हम डेटा इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये दोनों चीजों का संगम होने से ही, और कैसे इसको लाइफ लॉन्ग लर्निंग की जाए, इस उद्देश्य में जैसे मैं आपको फिर
प्रधानमंत्री जी का उदाहरण लेते हुए कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि हम सबको, न सिर्फ मुझे बट डॉक्टर हरीश शेट्टी जी को, सुरजीत रॉय जी को, हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे अपने को स्किल करें, रीस्किल करें और अपस्किल करें। और ये कंटिन्यूअस प्रयास हमारे पूरे जीवन अद्यंत होना चाहिए। तो मैं आपके द्वारा बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि आज के जो बच्चे हैं वो काफी हमसे तो काफी प्रवीण हैं, उनको बहुत सारी चीजें जो मिली हैं जो हमें नहीं मिली। तो अगर 1 to 1 अगर हम जब उस एज में थे और अभी जब बच्चे एज अगर हम उसकी तुलना करें तो हम पाएंगे कि हमारे जो बच्चे हैं वो काफी जागरूक हैं, प्रवीण हैं, काफी स्मार्ट हैं। और उनको अगर हम थोड़ा सा एक डायरेक्शन दे पाए, उनको एक कॉन्फिडेंस दे पाए, उनकी जो इनेट एबिलिटीज उसका विस्तार कर पाए इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग द एबिलिटी टू लर्न थ्रू आउट द लाइफ, वो उनके अंदर में जो ज्योति हम अगर जला पाए तो निसंदेह हमें इसको आगे आने में फायदा होगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत हमने भी काफी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को बल दिया है। मैं चाहूंगा कि वेदांता फाउंडेशन से संबंधित जितने कॉलेज हैं हमारे साथ इस स्कीम के माध्यम से भी जुड़े, ताकि एक परस्पर हमारा एक आवागमन हो, इन द सेंस ऑफ कि आपके पास बच्चे हैं उनको कैसे स्किल दी जाए। दे कैन ऑल्सो एक्ट एज आवर प्रैक्टिकल लैब्स, जिसमें हम इंटरवेंशन कर रहे हैं उस इंटरवेंशन का क्या फायदा होगा, कैसे उसको मॉनिटर करके और सुधार सकें, इसके बारे में हमें सहायता मिलेगी। मिस्टर रॉय हमारे पुराने परिचित हैं, उन्होंने हमारे साथ अप्रेंटिसशिप में काफी काम किया है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अप्रेंटिसशिप में हमने काफी सुधार किए हैं, काफी हमने सिंप्लीफाई की है। और जो अप्रेंटिसशिप की संख्या किसी जमाने में 2-2.5 लाख रहती थी, आज वो बढ़कर 8-7-8 लाख हो गई है। मुझे कुछ बच्चे दिख रहे हैं योगेश शर्मा जी के बच्चों की कैमरा में, मैं उनके चेहरा देख के मुझे ऊर्जा और गति भी मिल रही है। और मुझे लगता है कि हमारे लिए काम करने के लिए 24 घंटे भी कम है, हमें और काम करना चाहिए ताकि अपने देश के युवाओं को का उनका भविष्य हम उत्तम बना सकें और साथ ही साथ देश को एक अनप्रेसिडेंटेड प्रगति के लेवल पर ले जाने की व्यवस्था हो। सो बच्चे नमस्ते, आप अच्छी लग रही हैं, छोटी बच्चियां, और आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। और आप सबको इस आशा से कि फाउंडेशन इस दिशा में काम करता रहेगा और आप हमेशा अपने इंटरनल इवैल्यूएशन करते रहेंगे, आप हमेशा डेटा ड्रिवन रहेंगे और डेटा एनालिसिस विल आल्सो बी पार्ट, ताकि हमारे आपकी व्यवस्था में भी क्रमेण सुधार होता रहे, ताकि हम जिस स्थिति में वेदांता फाउंडेशन उससे और आगे बढ़ने में हमारी सहायता मिलेगी। और सरकार की तरफ से अगर हमें कोई भी आपकी सहायता करने की अगर आवश्यकता पड़ी तो निसंदेह उसमें बहुत ही ध्यान से और जल्दी विचार करने की चेष्टा करेंगे। और मैं आपसे आज इस सभा में जुड़े तमाम बच्चों को, जिनको भी आज ये लेक्चर सुनने को मिल रहा है, तो और आप सभी को मेरा आदर भरा नमस्कार और जय हिंद। Thank you so much, sir. It was a great opportunity. आपकी बातों को सुनकर बहुत प्रोत्साहन मिला है। और ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, ये एक रिंगस रिमोट एरिया है राजस्थान का, वहाँ के स्कूल के, वेदांता स्कूल के बच्चे हैं। और जरूर आपकी बात सुनकर उनका भी बहुत प्रोत्साहित हुए होंगे कि जो कॉलेज और स्कूल हमारे काम कर रहे हैं टुवर्ड्स स्किलिंग, उसको वो अपनाएं। और हम आपके कांटेक्ट में रहेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि वेदांता स्कूल्स और कॉलेजेस मॉडल बन जाएं गवर्नमेंट के लिए इस दिशा में, जहां पर हम मैक्सिमम स्कूल चिल्ड्रन और यूथ को एम्प्लॉयबल बनाएं थ्रू जो भी आपने अभी हमें उदाहरण दिए, किस तरीके से सजेशंस दिए, जो वो हम पूरी तरीके से अपनाकर और अपने देश को जितना डेवलप कर सकें कोशिश करेंगे। अनिल अग्रवाल सर भी स्टूडेंट्स और जहां पर भी लेक्चर देते हैं नेशनल डेवलपमेंट की ही बात करते हैं, और थ्रू स्किलिंग नेशनल डेवलपमेंट बेस्ट तरीके से हो सकता है। तो हमारी पूरी तरीके से कंट्रीब्यूशन रहेगा कि किस तरह हम इसको तेजी से आगे लेके जा सके, आप और देवलंकर सर और हरीश शेट्टी सर के माध्यम से। थैंक यू सो मच सर, आप बहुत ही बिजी हैं, आपने टाइम निकाला और आपके आज की जो
टॉक है। आई एम श्योर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स और प्रिंसिपल जो सुन रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन करने वाला टॉक रहा है। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद, आपको मेरी अपार शुभकामनाएं। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। भाई साहब, मैं निकलना चाहूंगा, क्षमा करें। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. I would request Miss Yogita Rewale from SY BAC to introduce Dr. Shailendra Deolankar, sir. Thank you, Shravani. Good morning, everyone. It is an honor to introduce a person of such immense stream, Dr. Shailendra Deolankar, sir. Dr. Deolankar, sir, is a gold medalist in MA, Pune University. He completed his ML and PhD from JNU and received the Vice Chancellor's Appreciation Award. Sir started his career as professor at Vidarbha Institute of Science and Humanities. He had been Director, Research and Innovation at Dr. Omi Baba State University, Director at State University for an administrative career, Director Government IAS Training Center, Principal Government Law College, School of International Relations and Strategic Studies. Has joined Director, Higher Education Mumbai and Amravati. Sir is known to have taken several change-making decisions. Dr. Deolankar, sir, made heartbreaking contribution during his tenure as officer on special duty to the Education Minister Maharashtra. Currently, as Director, Higher Education Maharashtra, Sri Deolankar, sir, has already given remarkable momentum to implementation of NEP and educational institutions in Maharashtra. It gives me immense pleasure to invite Dr. Shailendra Deolankar, sir, Director, Higher Education Maharashtra, to deliver his address on youth development, on youth employability and NEP. Hello. Yeah. Good morning. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, and it's indeed a great pleasure for me to be here today. Today, the Vedanta Foundation run a Vedanta College, which is affiliated to Mumbai University, has organized a national conference on youth employability. That's really a very wonderful and remarkable initiative. And today I have been given the task to speak on youth employability and national education policy 2020. In fact, I mean, Deolankar sir is traveling and there may be an issue with his internet connection. I'm sure he'll be back in a moment. Please bear with us. Yeah, is it okay? Is it okay now? Yes, sir. Yes, sir. Is it okay? Yeah. So, Principal Sangeeta Kohli Madam, the representatives of Vedanta Foundation, I think this national conference has been, arranged and organized at a very proper time when the entire nation is gearing up to implement the national education policy, and the state of Maharashtra has already, determined to implement it by June 2023. So, I mean, this conference and the talks and the entire deliberations which will take place in this conference will be an policy. ये जो बड़ा ही important topic है, I was not able to get the full coverage of the earlier speaker, Honorable Secretary.
central government, but some of the very important points and arguments what he has made, I totally endorse that. यहाँ पर जहां तक मुझे पता है कई सारे स्कूल एजुकेशन के भी बच्चे हैं जो इस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए हैं, दैट इज दे स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। कुछ राजस्थान कैंपस के भी कोहली मैडम बता रहे थे कि कुछ बच्चे हैं जो अभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सो मैं आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट सो दैट दे ऑल्सो विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी सिंपल टर्म, what exactly the national education policy, how it is important, and how it is going to be contributed in enhancing among the students. This is a very significant thing. जो नेशनल एजुकेशन, जस्ट लेट मी टेल यू, और इन सारे बच्चों के लिए भी एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, और वो एस्पेक्ट ऐसा है कि जहां तक इंडिया का सवाल है, हमारे पास में केजी से लेके पीएचडी तक जो लोग एजुकेशन के दायरे में आते हैं, उनका जो स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट 30 करोड़ है। इट्स ऑलमोस्ट 30 करोड़ पीपल हु कम्स टू द एम्बिट ऑफ एजुकेशन राइट फ्रॉम द केजी टू द पीएचडी लेवल, और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और जहां तक हम पूरे आउट ऑफ इंडियाज इंटायर पॉपुलेशन हम जब सोचते हैं, नाउ वी हैव ऑलमोस्ट 140 करोड़ पॉपुलेशन, एंड आउट ऑफ दैट ऑलमोस्ट 90 करोड़ पीपल आर रिलेटेड important thing that we need to understand। और उस लिहाज से जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो काफी मायने रखता है, और इसीलिए हमने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का फ्रेमवर्क किया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव। 1991 से लेकर अब तक, इनफैक्ट यू मस्ट हैव बीन नोटिस्ड that the reforms have been initiated in almost all sectors of our important portfolios. Education was the only sector which has left out of this reform ambit, and that's the reason Honorable Prime Minister has taken initiative, and he was pretty serious about the reforms in entire education system। और वो reforms के पीछे एक बहुत ही बड़ा जो रीजन है वो ये भी है, बिकॉज रिसेंट वर्ल्ड बैंक का एक सर्वे है दैट क्लियरली इंडिकेट्स दैट बाय 2040 तक वर्ल्ड का जो 40% वर्किंग पॉपुलेशन होगा, दैट वर्किंग पॉपुलेशन विल बिलोंग टू इंडिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट 40, हर चौथा आदमी जो वर्किंग पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, वो भारत का होगा। और अगर इस तरह का मैन पावर का कंट्रीब्यूशन, ह्यूमन रिसोर्स का कंट्रीब्यूशन अगर इंडिया कर रहा है, तो हमें इस मैन पावर को डेवलप करना, उनको एम्पावर करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड हु कैन प्ले दिस रोल? आई मीन नथिंग बट द एजुकेशन, एंड द एजुकेशन सिस्टम will play a very crucial role. Now, as we know that we are striving in almost all the fields. Our economy is going ahead with the GDP growth rate of almost 6%, and we are able to conquer the COVID pandemic also, and we are able to conquer the Russia-Ukraine war also, and our export has increased, and in almost all the fields we are doing really good. लेकिन उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है वो ये आती है कि आज जो भारत की पहचान है, वो भारत की पहचान है कि ये वर्ल्ड का यंगेस्ट नेशन है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट और अहमियत रखने वाली बात है, बिकॉज आज हमारा ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द एज ग्रुप ऑफ 35। जो 35 के बिलो हमारा है वो 50% पॉपुलेशन है। और आज इंडिया का जो एवरेज एज है, वो एवरेज एज भी जो है वो 35 है। जहां तक जो यूरोपियन स्टेट्स है उनका एवरेज एज 50 है, अमेरिका का 55 है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना इट्स क्लोज टू 60 ईयर्स।
So it clearly indicates that we have a huge chunk of young population with us. But can we call this young population as a demographic dividend? Is it possible to call them as a demographic dividend? So at the spur of moment, it will be a little bit exaggeration to call them as a democratic dividend unless and until we convert them into a performing asset. तो ये जो परफॉर्मिंग एसेट में जब तक हम उनको कन्वर्ट नहीं करेंगे, जब तक हम उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं देंगे, जब तक हम उनमें कोई स्किल का इन्हांस नहीं करेंगे, तब तक उनको परफॉर्मिंग एसेट में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। और जब ये परफॉर्मिंग एसेट में अगर कन्वर्ट नहीं होते हैं तो दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन टर्न इनटू अ डेमोग्राफिक डिजास्टर आल्सो, और ये डिजास्टर नहीं बनना चाहिए। इसलिए एजुकेशन विल प्ले अ वेरी सब्सटैंशियल रोल, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके तहत हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इंट्रोड्यूस किया है। ये पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है to provide choice to the student। अब यह है कि we are into the midst of 21st century, जहां पर हमारे बच्चे ग्लोबलाइजेशन को कनेक्ट कर रहे हैं। As we know that almost more than 40 lakh students, they applies to the foreign university, they goes to the foreign university, and let me tell you, in 2022, how much money that we contributed to the foreign exchanges of the other countries, that is approximately 30 billion rupees that the Indian people, Indian students, they have given to the foreign countries because they are going abroad for higher education। अब हमको उसी तरह की फैसिलिटी अगर हम उनको वहां पर प्रोवाइड करते हैं, इंडिया में प्रोवाइड करते हैं, तो वी कैन सेव अवर वैल्यूएबल फॉरेन करेंसी, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड दैट्स द रीजन since last 2 years after the introduction of the national education policy, a series of reforms to transform the entire ecosystem of education, the government, central government and the state of Maharashtra, because I represent the state of Maharashtra, and they have initiated a number of reforms so that this type of choice can be provided to the student. The national education policy has a very close link with the skill and how the skill can be inculcated among the students, how it can be enhanced among the students, and accordingly how we can make them employable, empower through the skill education. In national education policy, as we have devised our graduation curriculum, and now there will be uniformity in the credit system also. So for BA, let's take the example of BA। जब आप 12th के बाद में आप BA को एडमिशन लोगे या BCom को एडमिशन लोगे या BSc को एडमिशन लोगे, अभी महाराष्ट्र में जून 2023 ऑनवर्ड 4 साल का BA होगा, BCom होगा और BSc होगा। अब ये 4 साल का जो है उसका डिवीजन हमने किया है। अगर आप फर्स्ट ईयर में आपको 40 क्रेडिट का आपका कोर्स होगा, अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद में आप चाहते हो कि भाई मुझे फर्स्ट ईयर के बाद में कोई जॉब करना है, तो यू हैव अ लिबर्टी, यू हैव अ फ्रीडम टू डिसकंटिन्यू विथ योर ग्रेजुएशन। आपको फर्स्ट ईयर के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो सर्टिफिकेट लेने के बाद में आप कुछ काम भी कर सकते हो। उसके बाद में आप चाहते हो कि मैं 2-3 साल के बाद फिर से आ जाओ और सेकंड ईयर पूरा करूं, आप जब सेकंड ईयर पूरा करोगे तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, आप थर्ड ईयर पूरा करोगे तो आपको डिग्री भी मिल जाएगी। तो हर साल के लिए 40 क्रेडिट ये जो एलोकेट किए गए हैं, और जो चौथा साल है, अगर बच्चे को लगता है कि मुझे कोई रिसर्च करना है, मुझे कोई प्रोजेक्ट करना है, मुझे कोई इंटर्नशिप करनी है या मुझे कोई स्पेशलाइजेशन करना है, तो he has a liberty to pursue the 4th year also, and then there will be the BA with research, ये होगा, उसको डिग्री मिलेगा। और once you complete this 4-year course, then you will have only 1 year post graduation course। तो आपको सिर्फ 1 साल का ही पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स रहेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 40 क्रेडिट हमने दिए हैं हर साल के लिए, ये 40 क्रेडिट में से 16 क्रेडिट जो है वो स्किल के लिए है। और ये बहुत मायने रखता है कि अभी हम जो सोशल साइंसेस में जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो उनको एम्प्लॉयबल बनाना काफी जरूरी है। बिकॉज नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट इज एनगल्फिंग विद द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज दैट व्हाट इज बीइंग टॉट इन द क्लासरूम, इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट एंड डिटैच फ्रॉम द डिमांड ऑफ द मार्केट। मार्केट की डिमांड जो है वो बड़ी अलग सी डिमांड है। मार्केट चाहता है कि कुछ अलग तरीके के स्किल है, लेकिन जो हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं वो कुछ अलग है। तो देयर इज अ डिस्कनेक्ट, कंप्लीट डिस्कनेक्ट। नाउ वी वांट
industry to involve in academics. Now we want corporate area to involve in the academics so that we can run the courses as per their requisition, as per their requirement. Or that is what we have introduced several new practices in Maharashtra also. Let me tell you, Maharashtra is the first state in India which has introduced a very innovative and novel concept of professor of practice. अब ये जो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस कंसेप्ट है, इसमें नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारे जो टीचर्स होते हैं वो फॉर्मल एजुकेशन से आते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा होगा कि कोई फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर कोई एक आधा एक्सपर्ट है जो कोई इंडस्ट्री में उसने अपनी जिंदगी गुजारी है, जो फील्ड पे काम किया है, जिसको 30-35 साल का एक्सपीरियंस है, हम उसको डायरेक्टली प्रोफेसर करके ले सकते हैं, सो दैट ही कैन शेयर हिज एक्सपर्टीज, हिज नॉलेज, okay, his practical lessons, what he has earned throughout his entire career with the students. Now there will be industry sponsored courses. Okay, now we have asked all the colleges in Maharashtra also to develop and evolve some credit based courses, practical skill based credit based courses. अगर आपको ग्रेजुएशन में बीए पूरा करना है तो हर साल आपको 4 क्रेडिट का एक एडिशनल स्किल बेस्ड कोर्स पूरा करना पड़ेगा. तो आपका पहले ईयर का 40 क्रेडिट और 4 क्रेडिट का एक स्किल बेस्ड कोर्स होगा. तो जैसे आप 4 साल पूरे करोगे तो आपके 16 क्रेडिट के स्किल कोर्सेस पूरे हो गए. नाउ देयर आर लॉट ऑफ प्राइवेट players, they are playing very important role in enhancing the skill education, like Infosys है. Infosys sponsored कई सारे कोर्सेस, स्किल बेस्ड कोर्सेस है जो महाराष्ट्र के कई कॉलेजेस में अभी वर्क हो रहे हैं. सो वी हैव अलॉटेड देम 1 क्रेडिट कोर्स या 2 क्रेडिट कोर्स, और उनको बच्चे अभी ऑफ भी करने लगे हैं. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट in case of Maharashtra, we have a very unique type of setup. Let me tell you, because there are people who have joined this conference from out of Maharashtra also. They are representing the entire India. So let me tell you that Maharashtra is a unique state in an education system because we have 8 type of universities in Maharashtra. So we have the non-agriculture universities, that is we are the traditional. We have 30 non-agriculture universities in Maharashtra. Then we have private universities. We have 22 private universities in Maharashtra. Then we have deemed universities. We have almost 23 deemed universities in Maharashtra. Then Maharashtra government has introduced some very innovative practices of cluster universities. So we have one government cluster university, that is Homi Bhabha State University, located in Mumbai. Then we have introduced this cluster pattern in private sector also, and we have 2 important private cluster universities in Maharashtra, that is Hyderabad Sindh, located in Mumbai, and then Karmavir Bhaura Patil, located in Karad. So there are 2 private cluster universities. Then in the under the national umbrella of the national education policy, we have another scope, that if in case an education institute has a good strength of student, if it has good infrastructure, and it has a long tradition of percolating or disseminating education, and then if it has a NAC accreditation, and if it's an autonomous with continuous 3 years, so this university has the potential to become a degree awarding institute. So Maharashtra government has started conferring university status to this institute, and COEP, that is a very famous engineering college in Pune, and that engineering college recently has been awarded the unitary university status. So we have the unitary university also in Maharashtra. So Maharashtra have a very unique type of education pattern, and there are very lot of social reformers. They have a good institutions in Maharashtra also. So we are trying our level best to introduce the national education policy in Maharashtra. We have determined, and from June 2023 onward, the entire Maharashtra government has already geared up and determined to implement the national education policy. And the government has already, taken several reforms, appointed several committees. When recently also they have appointed a steering committee, which will look after the practical obstacles and the stumbling blocks which will come in the process of implementing the national education policy. So that is another important, facet. I think, and I personally feel that once the national education policy is in place, okay, it will be implemented in full swing. At that time, you will see that the skill enhancement and school education will get a new height. And this is a very important one. And because now
this is a very highly important that along with your conventional education, the skill component has to be there among the student. So I congratulate the Vedanta Institute for organizing this national conference on youth employability, because these youth are actually, they are the ambassadors of new India. They are the asset of India, and we need to convert them into a performing asset. So I congratulate once again the principal Sangeeta Kohli with her initiative. This conference is now a reality. Again, I congratulate the entire Vedanta Foundation team that they very strongly stood by the principal and her initiatives and organized this wonderful event. I have my best wishes for the entire discourses that will take place under the umbrella of this conference. इतने प्यारे बच्चे मेरे सारे सामने खड़े बैठे हुए हैं, तो मैं सब बच्चों के चेहरे देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये बड़ा ऑप्टिमिस्टिक इंडिया है, ये इंडिया के हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स है, स्पेशली जो बच्चियां मेरी सामने अभी बैठी हुई है, तो मुझे बड़ा खुश हो रहा हूं मैं। तो मैं आई एम सॉरी दैट आई एम नॉट एबल टू स्विच ऑन माय वीडियो, क्योंकि मैं ट्रैवल में हूं तो जरा थोड़े से डिस्टर्बेंसेस आते हैं, लेकिन आप सब इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का अच्छी तरह से इस्तेमाल करो एंड मेक योर करियर, मेक योर सेल्फ एम्पावर्ड थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशन। आई वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट and thank you very much Sangeeta Kohli for inviting me and allow me to deliver my thoughts and share my observations with you all. Thank you very much. Thank you so much, sir. We are really privileged with आपका इतना बिजी शेड्यूल होते हुए आप ट्रैवल कर रहे हैं एंड आपने फिर भी हमें टाइम दिया। एंड आप देख रहे होंगे हमने अपने सभी इंस्टीट्यूट्स में सभी स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया है कि आप और अतुल सर के जो हाईली एनरिचिंग वर्ड्स उन तक डायरेक्टली पहुंचे। हम तो उनको क्लास में सिखाएंगे ही एंड वी वांट टू अश्योर यू सर के वेदांता इंडस्ट्री से सपोर्टेड वेदांता फाउंडेशन बहुत कमेंडेबल जॉब कर रहे हैं। हमको आपकी सपोर्ट की जरूरत रहेगी और आप जैसे हमको गाइड करेंगे और जितना आपका हमको सपोर्ट मिलेगा हम उतनी पूरी कोशिश करके ये बच्चों को जितना लाइफ में आगे बढ़ा सके। हमारा विजन और मिशन यही है कि इनको एक एम्प्लॉयबल बना के डिग्निफाइड लाइफ लीड करे ये। सो थैंक यू अगेन सर एंड वी लुक फॉरवर्ड टू योर गाइडेंस, योर सपोर्ट एंड जो भी हमारा आगे के इनिशिएटिव होंगे हम आपके साथ डिस्कस करके आगे लेके जाना चाहेंगे। Thank you, ma'am. Now I would like to request Mr. Ankit Sharma from SYBAB to introduce Dr. Harish Shetty, sir. Thank you, Shravani. Good morning, everyone. I'm delighted to welcome our honorable speaker, Dr. Harish Shetty, sir. Dr. Harish Shetty is a practicing psychiatrist with a postgraduate degree in psychological medicine and postgraduate diploma in comparative mythology from Bombay University. He completed his MBBS, BPM, and MD from TN Medical College and St. G.S. Medical College. He is the national president of My Home India, an NGO that aims at integrating the rest of India to the northeast. And also, he is the governing board member at National Testing Agency for Assisting. He has contributed his service in providing mental health relief camps in Latur for 1 year. So now, I would like to invite him to share a few words on psychological preparedness of youth for campus to corporate life. Thank you. नमस्कार सभी को। बड़ा अच्छा लगा बच्चों को देख के, बच्चे बड़े खुश है, हंस रहे हैं, हमारी भी मूड को इम्प्रूव कर रहे हैं और यही बच्चे आगे हिंदुस्तान को बनाएंगे। राष्ट्र निर्माण का कार्य चालू है। Was very happy to hear the thoughts of Dr. Deolankar, Atul Kumar Tiwari and Mr. Roy. बहुत अच्छा, स्किलिंग इंपॉर्टेंट है, हुनर और कौशल दोनों इंपॉर्टेंट है, डेटा ड्रिवन इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट स्किल्स इंपॉर्टेंट है
और देवलंकर जी ने बहुत अच्छी तरह से महाराष्ट्र में क्या चल रहा है ये बहुत सुंदर तरह से बताया, और इससे बड़ा इंस्पायर हो रहा है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये सिर्फ BA के लिए नहीं, MBBS MD के लिए भी होना चाहिए। साइकोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस फ्रॉम कैंपस। देखो यार, क्रिकेट के मैदान में बच्चे हमारे युवा बहुत अच्छे कर रहे हैं। क्यों? उन्हें क्रिकेट खेलना भी आता है, बट आत्मविश्वास भी उनमें है, आत्मनिर्भर है वो, और उन्हें किसी का डर नहीं है। सामने से इमरान खान बॉलिंग करते थे तब गावस्कर, और बहुत अच्छी तरह से खेलते थे, बट हमें लगता था कि ये कोई विदेशी आक्रमण हो रहा है। सामने से जॉन स्नो जब बॉलिंग करते थे तभी हमें लगता था रॉबर्ट क्लाइव बॉलिंग कर रहा है। ये जो आत्मविश्वास है ये टूट गया है। आज के बच्चे आंखों में आंखें डालकर विश्वास से, आत्मविश्वास से समाज के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और दिस इज द न्यू इंडिया। और ये इंडिया बरकरार रहे, ये हमारी उम्मीद है। पर उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, वो मुझे आपके सामने विषय रखना है। अभी साइकोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस स्टार्ट्स फ्रॉम होम, घर से शुरू होती है, और कॉलेजों से शुरू होती है, स्कूलों से शुरू होती है। मैं बार बार कहता हूं कि CEOs are not born in MBA colleges. CEOs are born in families and in schools and colleges. पर स्कूल कॉलेजों में अलग अलग तरह के शिक्षक हैं। एक पैसिव टीचर जो शायद पढ़ाता है और निकल जाते हैं, और क्या करते हो यार, मुझे मेरा चेहरा नहीं देखना है सर। एक पैसिव शिक्षक जो सिर्फ पढ़ाता है और जाता है। न्यूट्रल टीचर जो अपना काम करके निकल जाती है। सिलेबस टीचर जो सिलेबस कंप्लीट करने में बड़ी उत्तीर्ण रहती है, बड़ा एंजाइटी रहता है। और डिप्लोमेटिक टीचर, किसी को खुश, किसी को दुख नहीं करना, किसी को कुछ नहीं कर, सभी को खुश रखना। ये शिक्षकों से ज्यादा एंगेजिंग टीचर से ही कैरियर चॉइसेस शुरू होते हैं। एंगेजिंग टीचर यानी क्या? जहां क्लास में संवाद है वहां दिल में क्रांति है। जहां घर में संवाद है वहां रेवोल्यूशन होता है। और जब संवाद होता है तो बच्चे सामने से आकर आपके साथ बात करते हैं, कहते हैं कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है। और संवाद से ही कैरियर शुरू होता है। और संवाद सिर्फ कैरियर काउंसलर के साथ नहीं, अपने माता पिता, अपने शिक्षकों के साथ। अभी शिक्षक कहेंगे हमें इतना काम है, ये नया कॉन्सेप्ट है। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। पैसिव टीचर से हेल्थ खराब हो जाता है। न्यूट्रल टीचर न्यूट्रल ही रहती है पूरी जिंदगी भर। सिलेबस टीचर सिलेबस के पीछे भागती है, पर जो फूल है उसको देखने से उन्हें टाइम नहीं मिलता है। He or she is not able to enjoy the trees. He or she is only able to look at the forest all the time. डिप्लोमेटिक टीचर इधर उधर 50-50 करके जिंदगी निकाल के, बट जो एंगेज करेगी ना टीचर, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, बच्चे भी फलते फूलते हैं। और बच्चे आपके सामने अपने एस्पिरेशंस, अपने एटीट्यूड्स और अपना स्वभाव सामने रखते हैं। तो पहला रूल ये है कि हमें बच्चों को एंगेज करना चाहिए। टॉप डाउन टीचिंग नहीं चलेगा, बातचीत की टीचिंग चलेगी, और जिससे बच्चों को कैरियर की तरफ ध्यान अच्छा लगेगा। अरे भाई ये किसने डाला, ये AAP नहीं है। मैं AAP के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मैं एस्पिरेशन, एटीट्यूड और पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहा हूं। हर एक बच्चे में एस्पिरेशन। मुझे जो था ना, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वार हुआ तब मुझे लगा एयरफोर्स को जाना है। उसके बाद जब न्यूक्लियर बम हमने पोखरान में एक्सप्लोर किया तब मुझे लगा साइंटिस्ट बनना है। ऐसे बदलते जाते हैं एस्पिरेशंस, और ये सही है, कहीं कुछ गलत नहीं है। माँ बाप भड़कते हैं, कॉलेज के शिक्षक कहते हैं ये बच्चा कल ऐसा कहता था, आज ऐसा कहता है। ये एस्पिरेशंस, चॉइसेस बदलते जाते हैं, और इंपॉर्टेंट बदलना। कुछ बच्चे ऐसे भी है, मेरा बेटा 19 साल की उम्र में कहता था मुझे क्या करना पता नहीं। ये भी अच्छी अवस्था है। कंफ्यूजन से कुछ न कुछ नया शुरू होता है। कंफ्यूजन से कुछ न कुछ क्रिएटिव चीज बाहर आता है। तो क्या यदि बच्चे कहते हैं मुझे पता नहीं, तो कोई चिंता नहीं, उनके एस्पिरेशन सुनिए, एटीट्यूड को ध्यान रखिए, और पर्सनालिटी के प्रति भी बिल्कुल ध्यान रखना आवश्यक है। अभी नाटू सॉन्ग्स अभी पूरे हिंदुस्तान में फैल गया ना, गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला ना, और सभी बच्चे RRR देख रहे हैं, राइज रोर एंड रिवोल्ट। पर मैं इसके बारे में नहीं कह रहा, मैं कहता हूं इस 3 Rs के। यदि कैरियर चॉइस सही होना चाहिए और कैरियर में बच्चे चमकना चाहिए, तो याद रखिए लवचिकता, रेजिलियंस, लचीलापन, रेजिलियंस,
ये हमने हमारे कॉलेजों स्कूलों में सिखाना जरूरी है, और ये एंगेजिंग टीचर के साथ ही हो सकता है, यानी मन का मसल्स को मजबूत करना। यदि कोई बच्चा नीचे गिर गया तो उसे अस्पताल कैसे ले जाना, यदि कुछ बच्चों को घर में तकलीफ है तो और बच्चे उसे कैसे संभाल सके, यदि एग्जाम में फेल हुआ तो फेल को कैसे हैंडल करना, यदि प्यार भंग हुआ तो प्यार भंग होने के बाद कैसे मैनेज करना, ये स्कूलों में कॉलेजों में सिखाना जरूरी है। थोड़े अकाउंट्स में मार्क्स कम मिले, इकोनॉमिक थ्योरी ना आए तो भी चलेगा, रेजिलियंस को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। और बच्चे, ऑल द गर्ल्स हियर, मुझे कुछ कहना है तुमसे, हाँ, नेवर डाई फॉर अ गाय। प्यार भंग होगा, ब्रेकअप होगा, मार्क्स कभी कभी कम मिलेंगे, पर जिंदा रहना बहुत आवश्यक है। ये रेजिलियंस सिखाएंगे तो कैरियर चौथ अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात, व्यवहार ज्ञान, रिलेशनशिप, इसका मतलब है संबंध कैसे रखना, टीम्स विन। मैं जहां खड़ा होता हूं वहां से लाइन शुरू होती है, ये फिलॉसफी नहीं चलेगा। साथ में बैठकर काम करना, साथ में बैठकर जीतना। जब अमेरिका मार्स तक सैटेलाइट भेजती है तो पूरा टीम नासा का काम करते हैं, पूरा टीम, नॉट वन पर्सन इज इंपॉर्टेंट। ये सिखाना स्कूलों में एंगेजिंग टीचर का काम है। उसके बाद बच्चे गिरेंगे, बच्चों को घाव होगा, चलते चलते गिरेंगे, परीक्षा में गिरेंगे, प्यार में गिरेंगे, घर के तकलीफ की वजह से भी गिरेंगे, और तब रिपेयर कैसे करना, रिफॉर्म कैसे होना, ये सिखाना बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चे, इस फोटो के ऊपर ध्यान मत देना ज्यादा। अवेयरनेस ऑफ फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस ऑफ फीलिंग्स का मतलब है जब मुझे कोई विचार आता है तब साथ साथ में भावना भी आती है, और विचार भावना आने के साथ साथ शरीर में फीलिंग्स भी होती है, शरीर में सेंसेशन भी होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अपने भावनाओं को एहसास करो। मुझे गुस्सा आ सकता है, खुशी महसूस हो सकती है, उदासीनता महसूस हो सकती है, जलन भी महसूस हो सकता है, साथ साथ में कभी कभी डर भी होगा और प्यार भी उभरेगा। तो ये सभी जो भावना है ना, ये शास्त्रीय संगीत का अलग अलग राग है। इसको एहसास करना, इसको पहचानना और इसको कैसे मैनेज करना। इमोशनल इंटेलिजेंस का अर्थ ये नहीं है कि हम फीलिंग्स को अपने स्लीव पे रखें, गुस्सा सबके सामने दिखाए, ये नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मीनिंग ये भी नहीं कि हम सबसे बहुत अच्छी तरह से बात करें। इमोशनल इंटेलिजेंस का मीनिंग है हम भावनाओं को कैसे मैनेज करेंगे, भावनाओं को कैसे हैंडल करेंगे, और साथ साथ में समानता को कैसे पाएंगे। भगवान बुद्ध ने कहा समानता इज इक्वानिमिटी। ये सिखाना कॉलेजों में जरूरी है। यदि ये हम सिखाएंगे तो बच्चे अपने आप से उड़ेंगे। और ये सिखाने के समय बच्चों को साथ लेकर सिखाना जरूरी है। ये टॉप डाउन इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता, ये पार्टिसिपेटरी इंटरेक्शन हो सकती है। मेरे बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके चित्र को जब वो कंप्यूटर में सबके सामने आया, हंसते हुए बच्चे। ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी अमानत है। माय डियर टीचर्स, प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल्स एंड एजुकेशनिस्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है मैं अपने आप को संवार सकता हूं। मैं स्ट्रांग नहीं हूं, मैं टूट सकता हूं तो फिर से रिपेयर होकर खड़ा हो सकता हूं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है मैं अपनी भावनाओं को अपने स्लीव पर नहीं अंदर रखता हूं, पर उसका पहचान मुझे है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है मेरे व्यवहार में मैं सभी को साथ लेके जरूर चलूंगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि आई विल नॉट बी फर्म। I'll be firm when it's essential. I'll be loving when I have to. Emotional wealth का मतलब क्या है? अरे 21st सेंचुरी में फिनेंशियल वेल्थ तो आप बनाते हो, पर थकावट की वजह से हम थके रहते हैं। इसीलिए इमोशनल वेल्थ को संभालना और बांधना, इसका मतलब व्यायाम करना, पतंजलि को याद करना, योग अभ्यास करना। अमेरिकन बच्चे हिंदुस्तान बच्चों से ज्यादा योग करते हैं। इमोशनल वेल्थ का मतलब है अपने आप को समय देना। 10 मिनट ना हो तो क्या है, और साथ साथ में विपश्यना, और ये सभी चीजें करके अपना जो इमोशनल जो ताकत है उसको मजबूत करना। साथ साथ में इमोशनल इक्विटी का मतलब है हर एक बच्चों की तरफ पहुंचना, अपने पॉपुलर किड्स नहीं, अपने बिल्कुल ये जो फेवरेट्स भी नहीं, सभी बच्चों के प्रति जाना। उसको इक्विटी कहते, इक्वालिटी नहीं। आई रीच आउट टू एवरी चाइल्ड एंड इफ आई एम अवेयर दैट आई एम नॉट रीचिंग आउट टू सम चिल्ड्रन, आई एक्टिवली मेक एन एफर्ट टू रीच आउट टू ऑल चिल्ड्रन।
My dear friends, equanimity is the foundation for great human beings, for great lives, for lives which will build India into one of the strongest countries across the world. My dear friends, आज की परिस्थिति देखो, ये सब करते हुए ना आज की परिस्थिति को समझना बहुत जरूरी है। आज की परिस्थिति ये है, सब जगह भीड़, बातचीत करने के लिए समय नहीं, साथ साथ में गुस्सा, रास्ते पर ओवरटेक करेंगे बाइक और हमें चिल्लाएंगे। तो एंटाइटलमेंट का भी बहुत बड़ी समस्या है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम दैट चिल्ड्रन और एडल्ट्स दे गेट इरिटेबल, एंग्री एंड बिलीव दैट दे आर राइट ऑल द टाइम। मैं जब छोटा था ना, मैं किसी के कांच जब तोड़ता था तो मेरी माँ कहती थी तुम्हारे पॉकेट मनी से पैसे जमा कर उस अंकल को देना। कुछ साल के बाद माँ बाप कहने लगे नहीं नहीं, कितना पैसा चाहिए आपको दे दो, मेरे बच्चे को मत चिल्लाओ। अभी माँ बाप कहते हैं कि मेरा बच्चा ने किया ही नहीं। इसको बदलना जरूरी है। सिर्फ स्किलिंग से नहीं होगा, इमोशनल स्किलिंग होना बहुत आवश्यक है। तो ये आज की परिस्थिति क्या है? ये हेट इज अ डिजीज। प्यार सिखाना जरूरी है अपने 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 स्कूलों में। 3 साल में 8 बिलियन लोग कोविड की वजह से एंजाइटी से सफर कर रहे हैं। पूरे एनवायरनमेंट में एंजाइटी का पोल्यूशन भी उतना ही है जितना धुआं का। और इस परिस्थिति को बदलने के लिए घर के अंदर पॉजिटिविटी और प्यार को शुरू करना जरूरी है। वी विल नॉट हेट बट विल डिबेट, विल डिस्कस, विल नॉट ह्यूमिलिएट। ये एनर्जी लाना बहुत जरूरी है। साथ साथ में अकेलापन भी बहुत बड़ा डिजीज है। सभी साथ में रहते हैं, लोगों को अकेलापन में सोते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन से डिस्कनेक्शन होता है। मैयत में आजकल लोग नहीं है, 4 लोग आते हैं और कहीं किसी की मैयत हुई तो पता भी नहीं चलता है। बोर्ड में आता है इसकी मृत्यु हुई। 10-15 साल पहले 200-300 लोग तो मैयतों में जाते थे। तो इंपॉर्टेंट है कि रिकनेक्ट टू ब्रेक लोनलीनेस एज वेल एज डिसकनेक्शन। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे मित्रों, बच्चों, आपको पता है 7 में से 1 व्यक्ति मेंटली इल है। आत्महत्या की संख्या पिछले 2 सालों में 17% से इंक्रीज हुआ है। और फैमिली इश्यूज आत्महत्या के लिए बहुत बड़ा कारण है। 1 out of 3 people who die of suicides are because of family issues. इसको समझना भी उतनी आवश्यक है। वीएस नायपॉल बहुत बड़ा लेखक है, इंग्लैंड में रहा है। उन्होंने एक बार एक पुस्तक में लिखा है, इंडिया लैंड ऑफ मिलियन म्यूटिनीज, मोस्ट प्रोबेबली कि इंडियंस डू नॉट कास्ट देयर ओन शैडोज, दे ऑलवेज वर्क अंडर समवन एल्स। पर ऐसा नहीं है, अभी परिस्थिति बदल गया है। इंग्लैंड के कंपनी को इंडियन कंपनीज ने खरीद लिया है। इसराइल के फार्मा कंपनीज को इंडियन फार्मा कंपनीज ने खरीद लिया। इंडियंस आर नाउ कास्टिंग देयर ओन शैडोज, वी आर लीडिंग and we are not only working under somebody else's shadows. And this is the new India. My dear friends, it's an era of Kohli, Sehwag, Shubham, आंखों में आंखें डाल के टक्कर देने की हिम्मत है। और इस टक्कर के लिए यदि हमें स्ट्रांग रहना है तो हमें हेट के विरुद्ध भी फाइट करना जरूरी है। बहुत ज्यादा आक्रोश, बहुत ज्यादा खुन्नस, हेट से प्यार मर जाता है। Hate is also very infectious, but also addictive. तो घर में जब बातचीत होती है, स्कूलों में जब बातचीत होती है और फैमिलीज में जब बातचीत होती है, तो पॉजिटिव चीजों की बातचीत करना जरूरी है कि इसका सोल्यूशन क्या करें। यदि माँ और पिताजी के बीच में झगड़ा है तो इसको कैसे सॉल्व करें। यदि हमारे फैमिली में और कुछ परिस्थिति है तो कैसे सॉल्व करें। सोल्यूशन सीकिंग ट्रेनिंग शुड स्टार्ट इन स्कूल्स एंड फैमिलीज। माय डियर फ्रेंड्स, as I slowly finish, I still start and by saying engaging teacher. Teacher who engages builds the foundation of great careers. My dear friends, hate blinds the West. Love awakens the worst. तो प्यार को बढ़ाना, व्यवहार ज्ञान को इम्प्रूव करना, लवचिकता, रेजिलियंस को बच्चों में लाना और ये करते करते साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी खत्म हो जाएंगे। साइकोलॉजिकल मेथड से बच्चे आगे जाएंगे, क्योंकि 21st century इज अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स और पहल करना, इनिशिएटिव। कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड इनिशिएटिव। माय डियर फ्रेंड्स, एज आई स्टॉप, लेट मी ऐड वन थिंग। सिर्फ स्किलिंग से करियर नहीं बनता है। तो बहुत आईटी इंजीनियर्स आते हैं मेरे पास,
माँ बाप के साथ नहीं बनता है, बाजू वाले क्यूबिकल का जो है ना दोस्त, उसके साथ नहीं बनता है, पत्नी और पति के साथ नहीं बनता है। जब तक हम सॉफ्ट स्किल्स, जैसे अतुल कुमार तिवारी जी ने कहा, बहुत जोर से नहीं लाएंगे, तब तक हम बहुत ब्रिलियंट व्यक्तियों को क्रिएट करेंगे, पर अंदर से खोखलापन रहेगा। और हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों में यदि खोखलापन रहा, हिंदुस्तान भी खोखला हो जाएगा। तो ये खोखलापन दूर करने के लिए ट्रू लव कैन नेवर हेट, इसको सभी को बताना, इसको स्प्रेड करना जरूरी है। विद दिस आई थैंक संगीता जी फॉर इनवाइटिंग मी, एंड व्हाट अ लवली लेक्चर आई हर्ड फ्रॉम अतुल कुमार तिवारी, Dr. Deolankar from Maharashtra. What an inspiring lecture both these gentlemen shared, and Mr. Roy, who shared the foundation of Vedanta and what they should be doing. With this, I can only say India is on the threshold of a great tomorrow, my dear children. और आप उसके आर्किटेक्ट हैं। मुझे तो बहुत उम्मीद है और मैं पक्का विश्वास करता हूं कि हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, परंतु रेजिलियंस, रिलेशनशिप, repair and reformation can be brought in colleges and schools and families. उसके लिए engaging parent और engaging teacher बहुत जरूरी है, and that is what will bring revolution in our countries. Thank you. Thank you so much, Dr. Shetty. This was such an empowering and such an eye-opener talk. Definitely, you are so right that the fundamental skill for making anybody successful is resilience, is learning how to deal with people, and is, yes, if टूट गए हैं तो हम जुड़ भी जाएंगे, गिर गए हैं तो खड़े भी हो पाएंगे और फिर से अपनी जिंदगी को भी चलाएंगे और अपने साथ बहुत सारों को लेके चलाएंगे। सर, आपको ये बताना चाहती हूँ, आप ये जो खुश और खिलते चेहरे हमारे बच्चों के देख रहे हैं राजस्थान में, मुंबई में, कलकत्ता में, ये सभी बच्चों को एजुकेशन के साथ वैल्यू एजुकेशन भी दिया जाता है। और वेदांता फाउंडेशन का ये एम्फेसिस है कि आपने जैसे बताया कि IIT IIM हो जाए, बहुत ब्रिलियंट हो जाए, लेकिन जब तक इमोशनल इंटेलिजेंस पे ध्यान नहीं दिया जाता, जब तक यूथ को और बच्चों को रेसिलियंस नहीं सिखाया जाता कि टूटे हैं लेकिन हम फिर जुट जाएंगे, फिर खड़े हो जाएंगे, ये बहुत जरूरी है। तो हमने बहुत सारे इनिशिएटिव स्किलिंग के साथ हॉबी क्लासेस और बहुत सारे क्लब्स एंड फोरम स्टार्ट किए हैं, जहां पर आपने जिस तरीके से बताया कि टीम स्पिरिट बिल्ड करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना, बट ये अभी एक, मैं जरूर बोलूंगी कि ये एक शुरुआत है और आप जैसे लोगों के साथ हम मजबूती से जुड़ना चाहते हैं ताकि ये बच्चों का एक फाउंडेशन इतना मजबूत हो जाए कि जो भी हम स्किलिंग और एजुकेशन दे रहे हैं वो उनको अपनी सक्सेसफुल होने में सस्टेनेबल रखे। आपने ये जो कुछ भी बोला ये बहुत जरूरी है कि एक बार पढ़ाई लिखाई से सक्सेसफुल हो गए, जॉब मिल गई, लेकिन उसको सस्टेनेबल रखना, उस पर जुड़े रहना और प्रगति में बने रहना, उसके लिए आपकी बताई गई सभी स्किल्स बहुत जरूरी हैं। एंड वी विल वर्क विद फुल इंटरेस्ट एंड होप आपका हमको सपोर्ट और गाइडेंस मिलता रहेगा और हम इस दिशा में मजबूती से आगे बढ़ेंगे। So thank you so much, sir. We are very fortunate. आप almost 2 घंटा ट्रैवल करके हमारे साथ आज जुड़े हैं और हमारे लिए इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकता। A big thank you from Vedanta Foundation team for making all this possible today. So I take this opportunity to thank all the dignitaries of the day today. अतुल तिवारी सर ने बहुत बढ़िया हमें बताया कि भारत सरकार किस तरीके से काम कर रही है, बहुत सारे स्कीम्स और प्रधानमंत्री की भी ये पूरी कोशिश है कि यंगस्टर्स को किस तरीके से एम्प्लॉयबल बनाया जाए,
देवलनकर सर ने बताया कि महाराष्ट्र स्टेट में देवलनकर सर ने अभी ज्वाइन किया है और विद इन 2-3 महीने में महाराष्ट्र में बहुत सारा रेवोल्यूशन लाया है ताकि एनईपी 2023 में पूरी मजबूती से शुरू हो जाए। तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जैसे वो बता रहे थे, ये एक बहुत बड़ा कदम लिया गया है और 4 इयर्स ग्रेजुएशन, स्किलिंग के साथ ग्रेजुएशन। सो महाराष्ट्र लीड ले रहा है दूसरे स्टेट्स के साथ कि एनईपी का पूरा फायदा हो एम्प्लॉयबिलिटी में। और एंड द आइसिंग ऑन द केक वाज हरीश शेट्टी का टॉक, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे हैं इनको हम कैसे पढ़ाई के साथ इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि ये जहां पर भी जो भी अपने गोल को फॉलो करें वो पूरी मजबूती के साथ। और एक दिन हम यही कोशिश कर रहे हैं वेदांता फाउंडेशन की तरफ से कि ये सभी बच्चे हमारा नाम, अपने माता पिता का नाम और देश का नाम बहुत ऊंचाई तक लेके जाएंगे। So thank you so much, and it was a great honor and privilege to have 3 such amazing dignitaries amongst us. Thanks a lot to all the participants from all over the country who took their time off and were there with us today. I'm sure you are highly enriched with the words of 3 unparalleled kind of dignitaries we could bring across to you to share their views on a very pertinent topic, which is taking a lot of global bandwidth, youth employability. So thank you so much, and we will keep bringing forward to you such kind of amazing discussions. Please be connected with Vedanta Foundation YouTube channel and do subscribe to our channel. Thank you. This section's end here. Thank you all for attending this section. Thank you all for your guidance.